Hello everyone, good morning. Welcome me back in the topic lines and angle. Today we will be finishing it off solving last few questions. I have rearranged the order so that similar type of questions comes together, but I'm covering each and every question. So we are going to finish it off. Let me tell you, as in to revise this topic, what else you have to do. One thing you need to completely understand all these questions again. Let me tell you again, you have to revise it. See, it's a geometric question, and normally geometric questions are repeatedly asked. The same similar questions will be asked. Considering that, these questions you have to resolve it, or you have to re-understand it. Okay, videos are of course with you, so anytime whenever you have to revise, you can revise it. Anyway, let's continue as fast as possible. The first two questions are very very simple, not at all difficult. अपने regular way से भी ये solve हो सकते हैं. Only thing is that when you look at the question, the question will not actually suggest directly how can you find the value of x and y. So first of all, I just would like to ask you which value you can find directly without any trouble. Is x or y? Let me tell you, it is x value. Check this triangle which I have colored just now. Do you think the x value you can find out? Yes. So in triangle BDC, one angle is 40, one angle is 90, and x you have to find out. That's it. So angle B plus angle D plus x is equals to 180 degree, and the reason you will write angles of triangle. So 90 plus 40, 130, x will be equal to 50. Okay, so I'm just directly writing it. You can simplify or solve it, because now you can easily do that, isn't it? So I have x value is 50 degree. I told you already, writing the values in the diagram will help you always. Okay, now tell me, just a minute, I'll just cancel that. Okay, I'll just erase this part. Now properly understand the next triangle to find value of y. Do you think y is the exterior angle of this triangle? So what is y is equals to? Y is equals to interior angles का removed interior angles का addition है ना. You remember that? I'm talking about this one. This is exterior angle है ना. तो this is equals to this angle plus this angle, बराबर है ना. तो 30 plus x, 30 plus x exterior angle, right? 30 plus 50, तो ये हो गया 80, हो गया y वैल्यू. ठीक है, मैंने सिंपली एक्सप्लेन किया है. यू कैन सॉल्व इट और यू कैन प्रेजेंट योर आंसर ऑल बाई योर सेल्फ. नाउ यू नो हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, इजंट इट? चलो खुद से करो, नो प्रॉब्लम. तो कुछ नहीं, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी, दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर. यहाँ पे देखते क्या फाइंड करना है. हमें क्या फाइंड करना है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ADB मतलब ADB, ये एंगल फाइंड करना है. तो इसको नाम देते थे हम लोग डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग समथिंग लाइक दैट. तो एंगल 1 आप हमें फाइंड करना है, एंड ADC एंगल 2 हमें फाइंड करना है. ये दो एंगल्स फाइंड करना है. तो उसके लिए हमें क्या क्या दिया है, एक एंगल 45, एक 55, एंड ये दो इक्वल है. इक्वल है मतलब ये अगर A होगा तो ये भी A होगा, बराबर है ना. वो तो हम लोग यूज़ ही करते हैं. टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2A. सो इन ट्रायंगल ABC देखो, 2A प्लस 45 प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180. डू यू एग्री विद दिस? This plus this, so 2A plus this will be equal to 100 वहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो इज इक्वल्स टू डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं 80 डिग्री. A विल बी इक्वल टू 40 डिग्री. कैसे, समझ में आ गया? तो डायग्राम में मैं लिख लेता हूँ, ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है. नाउ कैन यू फाइंड एंगल 1? देख लो, इन ट्रायंगल ADB है ना, इन ट्रायंगल ADB एक एंगल 40, एक 45, तो ये 1 मिल सकता है. एंड इन ट्रायंगल ADC एक 40, एक 55, तो 2 मिल सकता है. या फिर लीनियर पेयर से यूज़ करो, यू कैन गेट 2 एंगल. तो देखो खुद से करो, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ. नेक्स्ट वन इज ऑल्सो सेम वे. आई हैव टू फाइंड सम एंगल्स विथ सम गिवन पार्ट. तो जो भी गिवन है थोड़ा सा वियर्ड है. 26 तो पहले करते हैं, बहुत सिंपल है, तो वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ. 26 इन इफ XY Z आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, दैट मीन्स व्हाट, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 180, बराबर है. रीज़न लिखो, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये दिया है. z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 2, सॉरी 2 को इधर शिफ्ट किया, 2z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई.
तो एक्स प्लस वाई की जगह पे मैं लिखता हूँ 2z प्लस जेड इज इक्वल टू 180। हो गया, आंसर ही आ गया। देखो ठीक से देखो, समझ में आ रहा है ना। एक्स प्लस वाई की जगह पे मैंने क्या लिखा, 2z लिखा। तो आई गेट 3z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आई कैन गेट एंगल z। z कितना आएगा, 60। दैट्स इट, हो गया। 26 बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था, है ना, बहुत ईजी है। लेकिन लगने के लिए क्वेश्चन ऐसा लगता है अरे बाप रे कितना डिफिकल्ट है, राइट, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लेकिन 27 28 दोनों थोड़े से वियर्ड है। मैं दोनों में से एक सॉल्व करता हूँ। कौन सा सॉल्व करूँ ये मैं डिसाइड करूँगा, ऑफकोर्स यू कैन नॉट टेल मी। 27 करता हूँ मैं, चलो ठीक है। दोनों एक जैसे है, एक टाइप के है, बस डायग्राम थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको। दोनों एक टाइप के। मैं थोड़ा सा इस केस में एक वाइटनर लगा देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है ना, एक जैसे। चलो सॉल्व करते हैं। एंगल इक्वल दिया है तो ये ए होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये बी होगा। हम लोग लिख भी सकते हैं, जैसे कैसे लिख सकते हैं देखो, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू ए, एंड एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू बी। ये ऐसे पहले लिख लो, गिवन लिखो, एंगल बाइसेक्टर लिखो, जो भी हो, गिवन ही तो है डायरेक्टली। एंगल बी इज गिवन 90, चेक कर लो, ये 90 है। यूजिंग एंगल बी आई हैव टू फाइंड एंगल ओ। ए ओ सी मुझे फाइंड करना है, तो एंगल ओ, ये एंगल मुझे फाइंड करना है। ओके चलो वर्क करते हैं। तो एंगल ओ एंड बी, मतलब बी में हमें रिलेशन चाहिए, बस दैट्स इट। और उसके लिए कनेक्शन क्या है, ए एंड बी है। चलो एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस बी इज इट इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। और आई कैन राइट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल o as equation number 1. Similarly, angle B plus 2a plus 2b is equals to 180. Remember yesterday only we had done this kind of question, isn't it? तो एंगल B मतलब 90 हो जाता है, B तो 90 दिया हुआ, तो 90 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 180। 90 को उधर शिफ्ट कर सकता हूँ मैं। 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी क्या है, 180 माइनस एंगल ओ, 180 माइनस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180, ठीक है ना, 180 माइनस 90, ये जो 90 इधर शिफ्ट करना था ना हमें, वो लिख लिया वहाँ पे, ठीक है। तो 2 इंटू ब्रैकेट 180 माइनस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 90, ये उधर शिफ्ट हो गया, 180 माइनस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 45। 180 भी उधर शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस ओ इज इक्वल्स टू, माइनस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 45 माइनस 180, ठीक है ना। 45 माइनस 180 कितना आएगा, 135 आ सकता है, माइनस 135। तो एंगल ओ इज इक्वल्स टू 135 हो गया, सॉरी, डन। वही किया है जो हमने प्रूफ में किया था ना, यू रिमेंबर दैट प्रूफ, हाफ ऑफ समथिंग एंगल ए एंड 90 ऐसे कुछ तो था ना। तो सेम प्रूफ है, यहाँ पर भी वही करना है, बस यहाँ पे ये एंगल दिया है एंड आपको ये फाइंड करना है। तो खुद से ट्राई करो एंड कमेंट करो इसका आंसर मुझे, ओके, कमेंट दिस आंसर, वैल्यू ऑफ एंगल आर एस टी, ठीक है, करोगे, चलो ठीक है, कंप्लीट करो एंड मुझे आंसर बताओ। तो मैं तब तक आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पूरे इसका, ये लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने लास्ट में रखा था ये क्वेश्चन। करना क्या है देखो, बहुत कंफ्यूज करता है, जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब खुद से सॉल्व करोगे ना 100% ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना ज़रूर। तो बी ई सी ये एंगल एंड बी ए सी मतलब ये एंगल, इन दो एंगल्स में मुझे रिलेशन चाहिए, ये है बेसिक आइडिया, मतलब ये दो एंगल्स मुझे इक्वेशन में आने चाहिए। तो देखो कैसे आ सकते हैं एंगल, बहुत कुछ हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 2 बार यूज़ करना है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कितने बार यूज़ करना है, 2 बार, हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। ऑफकोर्स ए बी बी, बिकॉज वो एंगल इक्वल है, वो हमेशा हम लोग कर रहे हैं, है ना, बहुत बार ऐसे हुआ है कि हमने वैसे किया हुआ है। तो अभी तो आपको पता चल गया होगा कैसे कभी यूज़ करना होता है, ठीक है। एनीवे आपको समझ में आ रहा है कि देखो मुझे बी ई सी एंगल चाहिए,
मतलब ये वाला एंगल दिख रहा है बी ई सी। तो बी ई सी को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल को समझने की कोशिश करता हूँ। ये रहा मेरा वो ट्रायंगल, ठीक है, बी ई सी। तो बी ई सी कैसे आ सकता है, देखो ए, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू, ये वाला ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ई सी प्लस बी। समझने की कोशिश करो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो मैंने बोला था कि ये एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट है। बी को इधर शिफ्ट करता हूँ मैं, बिकॉज ए एंड बी आई वॉन्टेड टुगेदर। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ई सी, इक्वेशन नंबर 1। इसको मुझे पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में, दैट्स इट, मेरा काम हो गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फाइन, नाउ आई वुड गो फॉर अनदर ट्राइंगल। मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, देखो, ठीक है। नाउ इन दिस ट्राइंगल टेल मी, इजंट इट 2a इज इक्वल्स टू, ये जो कंप्लीट एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, 2a इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी प्लस 2b। बी को इधर शिफ्ट करता हूँ, 2a माइनस 2b इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ओके, ऑलमोस्ट आ गया, बस 2 कॉमन निकालो। 2 कॉमन निकाला क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। तो a माइनस बी क्या आएगा, 2 इंटू ब्रैकेट एंगल बी ई सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। हो गया, 2 को इधर शिफ्ट करो तो आई गॉट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। समझ में आया? कुछ नहीं किया, बस याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल हमें यूज़ करना है, 2 बार यूज़ करना है। 2 ही तो ट्राइंगल उसमें दिख रहे हैं, 2 बार यूज़ करो सो दैट आई गेट दिस एंगल्स, दीज एंगल्स। ओके, वंस आई गेट दिस एंगल, कनेक्शन तो मुझे पता ही है, ए एंड बी कनेक्शन है दोनों में, तो इक्वेशन को यूज़ करना तो आपको पता है कैसे यूज़ करना है। तो दैट्स इट, टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका। हम लोग क्विकली साइंस की तरफ जंप करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। टिल देन बाय बाय। तो आपका सिलेबस मुझे ऑलमोस्ट आ चुका है, शांति निकेतन के बच्चों का आ चुका है, विबग्योर के बच्चों का अभी तक सिलेबस मुझे ठीक से नहीं मिला है। तो दो चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग इन विबग्योर, प्लीज सेंड मी द सिलेबस फॉर योर PT1 सो दैट क्विकली आई विल बिगिन विद द रिविजन। हमने साइंस के 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए, मोशन, मैटर एंड आई थिंक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे कुछ तो है, मतलब सेल वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। तो हम लोग क्विकली रिवीजन शुरू कर देते हैं। मैं साइंस से शुरू करूँगा रिवीजन, कल की छुट्टी दे रहा हूँ मैं, हमारा सिलेबस वैसे भी आगे है, ठीक है। इफ़ यू हैव गॉट सिलेबस मोर देन 3 टॉपिक्स देन लेट मी नो इन साइंस, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्विकली रिवीजन शुरू करते हैं एंड PT1 के लिए हम लोग रेडी रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।